Greetings of the day to all the active learners and welcome to this online lecture of digital image processing. We are in the unit number 5 and we are discussing the concepts of image compression. Till now we have seen the theoretical part of image compression unit, and in this today's lecture we are going to see the numerical part of image compression unit. We are basically focusing on the numericals or the problems based on Huffman coding and how the degree of compression is achieved with the help of Huffman coding. So let's go through these problems in detail in today's lecture. We are on to this problem number 1, and here in this case the 6 symbol, what is the statement for this problem number 1 is that the 6 symbols with their probabilities are given below. Generate the Huffman code for this code, for this table, and here the symbols A1, A2, A3, A4, A5, A6 and their corresponding probabilities 0.1, 0.4, 0.6, 0.1, 0.04 and 0.3 are given here. Sorry, it is 0.06. So what we need to do here for this one is that we have to generate a Huffman code for these given symbols and their respective probabilities. Whenever such a problem appears, what we have to do is that what the first thing we have to do is that we have to arrange all these probability in the decreasing order of their all these symbols in the decreasing order of their probabilities. So here what I am going to do, first of all I am going to arrange, यहाँ पे मैं सबसे पहले सभी प्रोबेबिलिटीज़ को, सभी सिम्बॉल्स को उसके प्रोबेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैं इसे अरेंज करूँगा. सो फॉर दैट वन फर्स्ट विल बी A2, first will be your A2, its corresponding probability will be 0.4. second will be your A6, its corresponding probability will be 0.3. next there will be A1, probability will be 0.1, and then there will be this A4, probability will be 0.1, then there will be A3, probability 0.06, and finally A5, probability is 0.04. So in this way all the probabilities are, all the symbols are arranged in the decreasing order of their probabilities. Now after this, इसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाले दो सिंबल है आपके, नीचे वाले दो सिंबल है, सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी वाले जो सिंबल है उन दोनों को आपको क्लब करना है, उनका एडिशन करना है इन दोनों का, और जो कुछ भी एडिशन आएगा उसे आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको उसे अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर से उसे आपको प्लेस करना है. सो इस केस में 0.06 और 0.04 का एडिशन आता है 0.1, और 0.1 का 0. जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये सेम सबसे नीचे प्लेस होगा. सो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आ गया आपका 0.1 एडिशन, it will be 0.1, so 0.4 as it is, 0.3 as it is, 0.1, 0.1, and here it is again 0.1. So here addition of these two is nothing but 0.1. इन दोनों का एडिशन 0.1 आया है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में भी जो लास्ट दो प्रोबेबिलिटीज है उनको आपको फिर से ऐड करना है यहाँ पे भी. सो दिस टू विल गेट एडेड, इसका एडिशन आता है 0.2, और जब मैं यहाँ पे इसे 0.2 को जब मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ तो 0.4 हाईएस्ट, देन 0.3. अब यहाँ पे जो है आपका 0.1 जो है, जो आपका यहाँ पे 0.1 जो है वो 0.2 से लोअर है, दैट्स वाई 0.1 नीचे जाएगा आपका, और जो आउटपुट आ रहा है इन दोनों का एडिशन 0.2 वो ऊपर लिखा जाएगा लाइक दिस. सो 0.2 विल गो हियर. सो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सो उस केस में आपका 0.4 एज इट इज गया है यहाँ पे, 0.3 भी एज इट इज गया,
वो 0.1 आपका नीचे गया। यहाँ पे फर्स्ट केस में 0.4 एज इट इज, 0.3 एज इट इज, 0.1 एज इट इज एंड हियर अगेन 0.1 एज इट इज। ओके, एरोज आपको मार्क करने हैं। एरोज आपको जब आप कोडवर्ड इसके लिए जनरेट करेंगे तो एरोज विल बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे 0.2 और 0.1 का एडिशन यहाँ पे आता है 0.3, और जब 0.3 का एडिशन में देखता हूँ तो यहाँ पे 0.4 है, 0.3 है, सो ऑब्वियसली इट विल बी प्लेस एट द लोवेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ 0.3 को, सॉरी यहाँ पे 0.4, 0.3, वेरी गुड, 0.3। सो इस केस में आपका 0.4 एज इट इज जा रहा है, 0.3 भी एज इट इज जा रहा है, and so finally what you have to do is that you have to take the addition of the 0.3 plus 0.3, that will comes out to be 0.6, और 0.6 कहाँ पे प्लेस होगा आपका? 0.4 से ऊपर ज़्यादा है, दैट्स वाई इट विल प्लेस एट द हाईएस्ट पोजीशन। सो हियर इट विल बी 0.6 and here 0.4 will remain as it is. So here will be a 0.4. So in this way this complete Huffman table is prepared now. Okay, this table has been prepared now. Now next thing is to assign the code word. यहाँ पे next part है आपका code word को assign करने का। So और code word assign करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो 0.6 और 0.4 आया है, सो ऊपर वाले को मैं 0 असाइन करता हूँ, नीचे वाले को 1 असाइन करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों का आपका एडिशन हो रहा है, ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1। यहाँ पे भी ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, एंड लाइक दिस। ओके, सो आफ्टर दिस नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू जनरेट ए सिंबल फॉर दिस वन। यू हैव टू जनरेट ए, इस हर एक सिंबल के लिए आपको कोड वर्ड जनरेट करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस जनरेशन ऑफ कोड वर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिंबल विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। So next task is to assign the code word for each and every symbol. In the first coding table, we have added the last two probabilities, and we have traced the path for each and every symbol. So by tracing this path, we have to obtain the code word. यहाँ जो अपने एरोस करके जो एक पाथ ट्रेस किया है हर एक सिंबल के लिए, वो वाला पाथ आपको यूज़ करके आपको यहाँ पे कोड वर्ड जनरेट करना है। सो क्या प्रोसेस रहेगा देखिए फॉर दिस कोड वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what you need to do here in this case, is that I'm going to consider this A2 here in this case first of all. अब A2 0.4 यहाँ पे जा रहा, नेक्स्ट कोई सिंबल असाइन नहीं है, 0.4 एंड लास्ट में जब 0.4 आता है तो यहाँ पे 1 दिखाई देता है। सो 0.4 के सामने मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। ओके, एंड वर्ड लेंथ हियर इन दिस केस अगेन विल बी 1। जब मैं A6 सेकंड इसमें आता हूँ तो 0.3, नेक्स्ट 0.3, कोई भी सिंबल नहीं है यहाँ पे भी, 0.3 अगेन 0.3। अब जब इस 0.3 पे बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा। सो आई एम गोइंग टू राइट द 0, एंड जो कुछ भी पहला सिंबल आपको मिलेगा दैट विल बी योर LSB. सो हियर इट इज़ योर 0 फर्स्ट, एंड then it will go after this, it will go towards this 0.6 and again 0. So here it is, word length will be 2 and code word will be 00. Next for A1 के लिए 0.1 कोई सिंबल नहीं है, 0.1 कोई फिर ये 0.1 जा रहा नीचे 0.1 और यहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा 1, देन दिस 1 विल गो टू दिस 0.3, यहाँ पे भी 1 दिखाई दे रहा, अगेन 1, and this one will go to this 0.6, that becomes 0. So word length will be 3. Okay, now moving on to next, again 0.4 के लिए nothing, here it is 0. So first of all पहले इसमें मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, then 0, after that here it is again 0, then I am going to interact here with 1, and finally again 0. So here it is again, word length will be 4. Okay, देन 0.6 के लिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 0 आ गया, सो यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया आखिरी में।
then there is this 1, यहाँ पे फिर 1 1, then this 1 will go here to 0, so here it is again 0. This 0 will go to this again 0.3 के पास, 0.3 is associated with this 1 here नीचे, and then this 1 again will go to 0. So 5 will be the code word length. Okay. Thereafter 0.04, so here in this case it is 1, and then here it is again 1, here it is 1, then there is this 0 1 and 0. Word length will be 5. Word length will be 5. So in this way we can assign a code word to each and every symbol. Okay, and that is what the main task of Huffman coding. After this, what we are going to do, we are going to find out the average length code. So after this we are going to find out average length of a code word. So for that one, so next task is to find out average length of a code word, and it is given by LAVG, L average is equal to, for this one what you need to do is that you have to take this word length, आपको यहाँ पे word length लेना है, okay, this word length, and you have to multiply this word length with probability, okay, or probability with the code word length. So here in this case 0.4 into 1 plus 0.3 into 2 plus 0.1 into 3 plus 0.1 into 4 plus 0.06 into 5 plus 0.04 into again 5, and that will comes out to be finally, that will comes out to be 2.2 bits per symbol. So it will comes out to be 2.2 bits per symbol. So that is what will be a average length of a code word. Now next part is again another important part that we have to find out here in this case is of entropy. So we need to find out the entropy here. So entropy, next part is of entropy denoted by H, and the formula for this one equal to H equal summation over K equal to 1 to 6. So here in this case total there are 6 symbols, that's why I am going to take here 1 to 6 for Pk into log 2 1 upon Pk, log 2 1 upon Pk. So this is what the formula, and I am going to put the values in this one. So it will be 0 for the first one, 0.4 into log 2 1 upon 0.4 plus 0.3 log 2 1 upon 0.3 plus 0.1 log 2 1 upon 0.1. Now here you can see that 0.1 is 2 times, that's why I am going to take it here 2 into 0.1, that's why I am going to make it here 2 into 0.1, then plus 0.06 log 2 1 upon 0.1, sorry 0.6, and then 0.04 log 2 1 upon 0.0, and solving this we will get the entropy as 2.14 bits per symbol. So that is what about the problem number 1. Let's move on to problem number 2. Let's take the another problem. Problem number 2. Find the Huffman code for the following stream of data, and the stream of data is shown as here. Okay.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच अ प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड आउट हियर द यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कंप्लीट उसका हफमैन कोडिंग के लिए टेबल और उसका कोड वर्ड और बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशंस। सो हियर इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तीन चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू नोट हियर इज दैट the total number of symbols in the given stream of data, the total number of symbol in given stream of data and which is nothing but अगर मैं इसे पूरे काउंट करता हूँ so that will comes out to be 28, it will comes out to be 28. Then next thing I need to note here is that total different symbols and that will nothing but here in this case is 7, that will comes out to be 7. And after this I have to go for the probability of occurrence. So probability of occurrence here in this case is nothing but given by total number of symbol total number of occurrence of symbol, एक सिंबल कितनी बार आया है उसका नंबर है कंप्लीट अपॉन total number of symbol which is 28, total number of symbol. So according to this the probability of symbol 1 is, so probability of symbol 1 is equal to, I will call it as S1, उसके लिए मैं एक नंबर देता हूँ S1 is equal to, अब यहाँ पे अगर मैं वन कितनी बार अकर हुआ है देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, so it is occurring for the 7 times, so 7 by टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स 28, 7 by 28। इसे मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ क्योंकि सामने जाके फिर मुझे इजी जाएगा। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स व्हाट यू कॉल्ड एज फ्रैक्शंस में से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट फॉर ऑल द रिमेनिंग 6 symbols. So I am going to write for remaining 6 symbols now. So here I have written the probability of symbol for 1 2 3 4 5 6 and 7, and I have named it as S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 respectively, and the probabilities are written here on this particular page. Let's move on to next part, that is of Huffman coding table. So अब इस नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो हफमैन कोडिंग टेबल का आपका रहेगा। सो इन हफमैन कोडिंग टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, एज वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज all the symbols with their probabilities in a decreasing order. पहले तो आपको सबको इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है, and for that one what I have done, I have arranged all this S1 to S7 in a decreasing order, and after that what I need to do is that I need to add the lowest 2 probabilities, जो सबसे नीचे वाली 2 probabilities है उन्हें मुझे ऐड करना है। सो यहाँ पे 2 by 28 और 1 by 28 को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 3 by 28 और 3 by 28 मेरा यहाँ पे रहेगा। सो हियर इट विल बी 3 by 28। सो रिमेनिंग अभी 3 by 28 जो है वो जब मैं इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर से नेक्स्ट कॉलम में भी देखता हूँ तो वो नीचे आएगा। दैट्स व्हाई ऑल द रिमेनिंग विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 7 by 28, 6 by 28, 5 by 28, 4 by 28 as it is, and again 3 by 28. Now moving on to next, that is second। जब मैं देखता हूँ सेकंड कॉलम में जब मैं लास्ट 2 की एडिशन करता हूँ यहाँ पे, सो इन दोनों के एडिशन में करने वाला हूँ अभी। 3 by 28 प्लस 3 by 28 बिकम्स 6 by 28, और 6 by 28 जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 7 by 28 है, 6 by 28 यहाँ पे आएगा मेरा 6 by 28।
सो पहले दो तो एज इट इज चले गया मेरे 7/28 एज इट इज, 6/28 अगेन एज इट इज, और ये जो यहाँ पे 6/28 आया है दोनों का एडिशन वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6/28 लाइक दिस। ओके, एंड आफ्टर दिस 5/28 विल कम हियर, एक स्टेप नीचे आ जाएगा और 4/28, अब इन दोनों का होगा फिर से एडिशन। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आफ्टर दिस फर्स्ट इट इज एट रिमेन एज इट इज, ये भी जैसे कि वैसा है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे गया 5/28 गया नीचे, 4/28 भी गया नीचे। अब इन दोनों का एडिशन होगा, अब इन दोनों का एडिशन होता है 9/28, जो 7/28 से भी ज़्यादा है तो वो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन में 9/28, यहाँ पे 7/28 आएगा नीचे और 6/28 भी आएगा आपका नीचे, 6/28 एंड अगेन हियर इट इज 6/28। सो इसे मैं कैसे डिनोट करूँगा, यहाँ पे ये गया सबसे ऊपर 9/28, 7/28 उसके नीचे, वन सभी एक एक से नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा फिर से 6/28 प्लस 6/28 बिकम्स 12/28, जो 9/28 से भी ज़्यादा है। सो इट विल गो एट द फर्स्ट पोजीशन। So here it becomes 12/28, then here it is 7/28 will remain as it is now again, oh sorry 9/28 नीचे आएगा आपका, 7/28 उसके भी नीचे। So it becomes एक पायदान नीचे दोनों भी, और after this 9 here it is 9/28 plus 7/28 becomes again 16/28, so that will again go at the first position. So 16/28 will be here, 16/28 and 12/28 will be अब आपको नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, यू हैव टू असाइन द जीरोज एंड वंस। जिन दो का आप एडिशन कर रहे हैं उन दोनों को आपको 0 और 1 यहाँ पे आपको असाइन करने हैं। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 and again here it is 0 and 1. Okay, so after this 0 and 1 you have to go for नेक्स्ट टेबल, और नेक्स्ट टेबल में आपके क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो यहाँ पे मैंने एक दूसरा टेबल बना लिया है सिंबल, प्रोबेबिलिटी, कोडवर्ड और वर्ड लेंथ का, एंड फॉर दैट वन नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोडवर्ड फॉर S1 to S7। सो जब मैं S1 को यहाँ पे ट्रेस करता हूँ, S1 यहाँ पे गया, कुछ भी नहीं है, कोई बिट नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे 1 यहाँ पे दिखाई देता है। सो दैट 1 विल बी माई LSB। सो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं, और देयर आफ्टर दिस 1 विल गो हियर, सो आई विल गेट हियर 0। सो 0 1 एंड वर्ड लेंथ विल बी 2। ओके, देयर आफ्टर S2 के लिए नो नो नथिंग 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 एंड हियर इट विल बी 0। सो हियर इट माई 0, देन कम्स हियर and it will go here and here it is again 1. So 1 0, code word length will be 2. Thereafter S3 के लिए no bit is available, here it is 0, यहाँ पे 0 आ गया पहला, तो LSB में मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। This is for this one, this is for this one, okay. देन यहाँ पे मुझे 0 मिल गया, फिर यहाँ पे ऊपर जाऊँगा 9/28, कुछ भी नहीं है, कोई बीट नहीं है, यहाँ पे फिर से मुझे अब 0 मिला यहाँ पे, and then this will again going to give me the 0. So 000, code length will be 3. Then 4/28 के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 आया डायरेक्टली, so here comes 1, then here it is 9/28, यहाँ भी कुछ भी नहीं, then यहाँ पे 0 and this 0 will go here, so 0 0 1. So 4/28 के लिए भी 3, so here this is for this one, don't get confused with it.
देन 3/28 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मुझे 0 मिला सबसे पहले, सो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 0, देन 0 के बाद यहाँ पे 6/28 पे गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे फिर 1 मुझे मिला नेक्स्ट इसमें, सो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया 6/28, और फिर ये डायरेक्ट गया यहाँ पे 1, सो 1106, कोड लेंथ विल बी 3। अब 2/28 के लिए देखते हैं, यहाँ पे 0, फिर ये गया यहाँ पे 1 के लिए 0, फिर 1, फिर ये 1 गया यहाँ पे 6/28, फिर यहाँ पे आया मुझे 1 फिर से एक बार, फिर ये 1 ऊपर गया, और फिर आएगा मुझे आखिरी में फिर से एक बार 1, सो 4। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पे लास्ट इसके लिए आएगा आपका कोड वर्ड 1 1 1 and 1। Okay, so in this way you will get the code word for each symbol using Huffman coding. So that's it from the problem number 2. We will move on to next problem and another different and interesting problem, that is problem number 3 में आप अपन देखेंगे। So we are on to this problem number 3, and statement is for the image segment shown below, compute the degree of compression that can be achieved using Huffman coding of pixel values. So यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज किया गया है, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ कंप्रेशन निकालना है और उसके लिए आपको हफमन कोडिंग यूज़ करना है, और पिक्सल वैल्यू यहाँ पे एक दिया गया है, यानी कि नॉर्मली अपने को कैसा था, एक स्ट्रीम ऑफ डेटा या फिर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मिलती थी, बट इस केस में ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको इमेज का एक छोटा मैट्रिक्स दिया गया है, इमेज सेगमेंट दिया गया है, और उसके आपको पूरा वो हफमन कोडिंग के विद द हेल्प ऑफ हफमन कोडिंग यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले तो मैं हफमन कोडिंग करना है तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस of pixel value 0. So first of all, first part will be probability of occurrence of pixel value 0 which is equal to, अब मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में, यहाँ पे मुझे 0 इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितनी बार आया मुझे चेक करना है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक बार आया है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, उसमें टोटल इसमें कितने पिक्सल्स है, यहाँ पे 4 रोज है, 4 कॉलम्स है, दैट बिकम्स 1/16। ओके, आई विल कॉल इट एज P0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल 0। ओके, देन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस फॉर द पिक्सल वैल्यू आई एम गोइंग टू टेक, जहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ सो दैट लिखने की ज़रूरत नहीं, 1, और 1 के लिए आएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ 1 अपीयर हुआ है 2 बार, सो इट इज़ 2/16, और उसको मैं डिनोट करूँगा P1 से। देन देयर विल बी दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल थर्ड ऑफ पिक्सल वैल्यू 2 के लिए मेरा, सो दैट विल बी यहाँ पे 2 अपीयर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 बार, 6/16, I will call it as P2, and finally for probability of occurrence for symbol 3 or pixel value 3, that will be 7/16. I will call it as P3. So in this way I will get the probability of occurrence of every pixel value given in the particular image segment. So सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा। Okay, so let's move on to next, that is Huffman coding टेबल के लिए अभी अपन देखेंगे। So for that one I need to arrange all these 4 probabilities in the decreasing order, all these 4 symbol according to their decreasing probabilities. So यहाँ पे मेरा पहला आएगा symbol and then its corresponding probability, and for that one I am going to do P3 के लिए है 7/16, सो सबसे ज़्यादा है। P2 आएगा बाद में, दैट इज 6/16, देन आएगा P1 2/16, और फाइनली P0 दैट इज 1/16। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले दो का एडिशन करता हूँ मैं, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 3/16, सो वो 6/16 से कम ही आएगा, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ 3/16, 7/16 as it is, 6/16 also as it is।
अभी नीचे वाले दो का एडिशन करता हूँ, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 9/16, जो जाएगा ऊपर 9/16 और नीचे वाले में आएगा 7/16। सो हियर इन दिस केस ये जाएगा नीचे, और इन दोनों को मुझे अब असाइन करना पड़ेगा सिम्बॉल्स 0 1, यहाँ पे भी 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1। ओके, सो ये होगा आपका पहला, जिसमें आप प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस पहला हफमैन कोइंग टेबल। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन। सो ये होगा आपका पहला, इसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ कंप्लीट। ओके, नाउ अब सेकंड इसमें आपको करना है, यू हैव टू कैरी आउट द, you have to find out the code word. So for that one, here will be a symbol, its corresponding probability and code word, and finally word length. And for that one, what I am going to do is, first of all P0 के लिए है 1/16। अब इसका कोड वर्ड क्या बनेगा देखते हैं। P0 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नो इशू, P0 के लिए, सो P0 यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, 1 आया सबसे पहले, तो आखिर में मैं 1 लिखूँगा। फिर यहाँ पे दूसरा भी मुझे, यहाँ पे जिसका एडिशन जा रहा है वो भी 1 है, एंड देन हियर इट इज 0। सो 0 1 1, वर्ड लेंथ विल बी 3। ओके, P1 आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट, दैट इज 2/16। सो यहाँ पे P1 0, देन 1 एंड देन अगेन 0। सो सबसे पहले आया 0, देन अगेन 1 एंड हियर इट इज 0, वर्ड लेंथ विल बी 3। P2 के लिए क्या है बेसिकली, P2 के लिए क्या आएगा आपका, दैट बिकम्स 6/16। ओके, सो हियर बिकम्स 6/16, सो 6/16, सो 6/16 यहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ पे गया कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 मिला और आगे जाके भी 0। सो पहला 0 और ये दूसरा 0, वर्ड लेंथ विल बी 2 एंड देन P3। सो दैट बिकम्स 7/16। सो 7/16 यहाँ पे गया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और नीचे डायरेक्टली 1 है, सो 1। सो यहाँ पे आपको मिला है, दैट विल बी योर सेकंड टेबल। अब यहाँ पे आपको एक और पार्ट निकालना है, दैट इज L एवरेज, विच इज नथिंग बट एवरेज इंफॉर्मेशन इन द पर्टिकुलर सो यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज लेंथ ऑफ ए कोड L एवरेज। So that becomes 1/16, which is nothing but word length into probability. So probability 1/16 into 3 plus 2/16 into 3 plus, that will be there, next is 6/16 into 2 plus 7/16 into 1, which will comes out to be 1.75 bits per pixel. So this is what we have, that is average length of a code, that is 1.75 bits per pixel. So we will see now how this degree of compression is achieved in this particular problem. So let's discuss the concept of degree of compression in this particular problem. From the given image matrix, it is clear that the maximum value is 3. So अपना जो मैट्रिक्स दिया है अपने पास, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 है। सो अगर आपको इस वैल्यू को अगर आपको एनकोड करना तो मैक्सिमम बिट, सो दिस मैक्सिमम वैल्यू को अगर आपको एनकोड करना हो तो मिनिमम बिट जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे 2 बिट्स आपको लगे, दैट इज 1 अगर मैं डिजिटल में रिप्रेजेंट करता हूँ, बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1 मुझे लगेगा, विच रिप्रेजेंट्स 3 इन द डेसिमल, एंड देयरफॉर ओरिजिनली वी आर इन द नीड ऑफ 2 बिट्स टू रिप्रेजेंट द पिक्सल। एक पिक्सल आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगेंगे, टोटल 2 बिट्स लगेंगे, बट थ्रू द हफमैन कोडिंग वी आर इन द नीड ऑफ ओनली 1.75 बिट्स टू रिप्रेजेंट द पिक्सल। और जब मैं यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ ए कोड मैंने निकाली तो दैट विल कम्स आउट टू 1.75 which is less than 2, and that's why we can say that
हियर इन दिस केस अगर मैं हफमैन कोडिंग अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ बिट्स मेरी बिट्स रिक्वायरमेंट पर पिक्सल जो है वो कम हो जाएगी and hence the compression ratio or the degree of compression is achieved through the Huffman coding, and it is given by degree of compression is equal to 2 upon 1.75, that is 1.14. So degree of compression comes out to be here in this case is equal to 1.14. So with this we have completed this problem number 3. Hope that all the problems from the today's unit are clear with you. We have seen total 3 problems of different types based on Huffman coding. With this we have completed the unit number 5, that is image compression unit from our syllabus. In case of any difficulty from the complete unit, you can ask me anytime. All the content, video lectures, PPT and problems are uploaded on our LMS platform. So go through this and feel free to ask any query regarding with it. We will meet in the next lecture with the new concept of new unit from this digital image processing subject. Till then, stay connected. Thank you very much.